Good morning, students. I hope you all are well. So, as yesterday or in our previous class, we have completed till our chapter 5, that is housing all around. So, today we will start our new chapter, that is chapter 6, and the name of the chapter is material and solution. So, student, just before starting the chapter, first we will discuss about the different types of material or all the substances present in this world, either living or non-living, they all are made up of matter. And about the matter you have also learned in your previous classes that matter is anything that has weight and occupies space, यानी उसमें कुछ weight होता है और वो space भी occupy करता है. Then after that you have also learned that there are three different types of or three different forms of matter: solid, liquid and gases. So solids that have fixed shape and they occupy fixed volume. Then after that there is a liquid. Liquids do not have fixed shape and they take the shape of the container in which they are poured. Then last one is the gases and they do not have fixed shape and the volume that they occupy is also not fixed, क्योंकि वो space जो occupy करते हैं वो भी क्या होता है, जितना भी उनको space available होता है उस पूरे space को occupy कर लेते हैं gases. Then उसके बाद अगर देखें particles के बीच में जो distance होता है वो solids में सबसे कम होता है, then liquids में solids से ज़्यादा होता है. और अगर हम बात करें gases की तो gases के particles जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा far apart होते हैं, बहुत ज़्यादा distance पे होते हैं. That's why the particle of gases are free to move rather than the solids and the liquids. इसीलिए solid जो होता है उसके particles पास पास है, इसलिए हम compress नहीं कर सकते, वो hard होते हैं. वैसे जो liquids होते हैं वो flow कर सकते हैं क्योंकि particle बीच में क्या हो, थोड़ा सा distance होता है. एंड वाटर या फिर लिक्विड जो है वो हाई लेवल से लो लेवल पे ऑलवेज फ्लो करते हैं. देन गैसेस की बात अगर हम करें तो वो भी क्या होती है, ऑल डायरेक्शन में वो अपने आप को स्प्रेड कर पाते हैं, जितना भी स्पेस अवेलेबल होगा उसको वो पूरा ऑक्युपाई कर लेती है. देन अबाउट दिस our new chapter is material and solution. So in this chapter, first of all, introduction of the chapter. So in introduction of the chapter we will learn or we will discuss about what we have to learn in this chapter. So first about the matter. So matter is anything that has mass and occupies space. Then there are three forms of matter. Three forms of matter are solid, liquid and gas. So we have also learned in previous classes this solid, liquid and gases, about the properties of the solid, liquid and gases. Then after this there is a new topic of the chapter is solute, solvent and solution. So first just to know about this solute and solvent we will learn the definition or we will understand what is solution. So if we mix sugar in a water, so we know that a sweet water is formed, and if we add salt to the water then salty water is formed. But the water that is formed, that is the salty water that it is formed, is known as solution. Similarly, on adding sugar in water, the sweet water that is formed is known as solution. So the definition of solution is a solution is formed when two or more substances mix together in such a way that they are evenly distributed. यानी अगर हमने शुगर को ऐड किया तो शुगर का जो टेस्ट होगा वो वाटर में इक्वल होगा. अब कहीं पे भी देखेंगे अगर हम ऊपर वाले लोग वाटर ग्लास में से वाटर ले रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो सेम टेस्ट. अगर हम बॉटम साइड से ग्लास में से वाटर ले रहे हैं जो कि हमने इसमें शुगर ऐड किया तो वो भी क्या होगा, इक्वल टेस्ट उसका होगा. लेकिन जब तक अगर शुगर ऐड नहीं हुई है तो जो बॉटम में जहाँ पे शुगर हमने जाके वो डिपॉजिट हो गई है तो वहाँ पे थोड़ा सा वाटर जो होगा वो सॉल्टी होगा until and unless the complete sugar dissolve in water. लेकिन क्या होता है, शुगर सॉल्यूशन तब बनता है जब कोई सब्सटेंसेस को हमने टू सब्सटेंसेस को या फिर टू से ज़्यादा सब्सटेंसेस को हमने मिक्स किया और वो मिक्स हो गए टुगेदर, वो मिक्स हो गए, देन उसके बाद क्या हुआ, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. यानी शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं फाइन पार्टिकल्स में. फर्दर फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होने के बाद वाटर के बीच में, हमें पता है कि वाटर क्या है, एक लिक्विड है, और लिक्विड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पार्टिकल के बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है. उस स्पेस को ऑक्युपाई कर लेते हैं शुगर के पार्टिकल्स. डेट्स वाई जो सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, इवनली होता है, कहीं से भी इवन टेस्ट होता है उसका. स्वीट टेस्ट होता है वो, चाहे वाटर को कहीं से भी टेस्ट करें. देन
इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की। सो सॉलिड एंड सॉल्वेंट, फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट सॉल्यूट। सॉल्यूट जनरली अगर हमने शुगर को ऐड किया है वाटर में, तो यहाँ पर शुगर जो है वो क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट है। सिमिलरली अगर हमने वाटर में ऐड किया है सॉल्ट को, देन सॉल्ट इज नोन एज द सॉल्यूट एंड वाटर इज नोन एज द सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। इट इज द सब्सटेंस that dissolves in the solvent। जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है वो सब्सटेंस कहलाता है सॉल्वेंट। और दैट इफ यू टॉक अबाउट द सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट होता है ये वो सब्सटेंस है जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। सो इट इज द सब्सटेंस in which solute dissolves, यानी जो डिसॉल्व हो रहा है वो है सॉल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व हो रहा है वो है सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बनाते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंबाइन टू फॉर्म द सॉल्यूशन। और जनरली अगर हम देखें तो सॉल्यूट जो होता है वो क्या है, स्मॉलर क्वांटिटी में होता है, वैसे जो सॉल्वेंट है वो क्या है, लार्ज क्वांटिटी में होगा। और अगर हम देखें तो वाटर जो है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो सब्सटेंसेस हैं वो डिसॉल्व हो सकते हैं। अगर हम एक एग्जांपल इस पर देखें तो हमने शुगर का एग्जांपल लिया, वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। वहीं पर वाटर क्या है, यहाँ पर सॉल्वेंट हो गया, और हमारा बनेगा क्या है यहाँ पर, शुगर सॉल्यूशन। So, in this chapter we have first discussed about, or in this topic we have first discussed about that matter is anything that has mass and occupies space. Three forms of matter are there: solid, liquid and gases, that we have already learned in our previous classes. Then there are solute, solvent and the solution. These are the part of the solution, solute and the solvent. When a solution is formed when two or more substances are mixed together in such a way that they are equally distribute हो जाती है, then the solution will be formed. And solute and solvent are the two parts of the solution. So solute क्या है, वो substance जो कि solvent में dissolve होता है, और solvent कहलाता है वो substance जिसमें solute dissolve होता है। तो solute and solvent together combine and form the solution. और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो शुगर सॉल्यूशन है, जैसे शुगर हमने ऐड किया है वाटर में, तो शुगर यहाँ पर क्या करेगा, वो कहलाएगा सॉल्यूट, और वाटर जो है वो कहलाएगा सॉल्वेंट। सिमिलरली अगर हमने वाटर में सॉल्ट को ऐड किया है तो वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, और जो शुगर है, सॉल्ट जो है वो है हमारा सॉल्यूट का एग्जाम्पल। अगर हम इंक ले या कुछ इंक भी अगर हम वाटर में ऐड करते हैं, तो जहाँ हमने जब उसको तुरंत ऐड करते हैं उसके सब टाइम हम देखते हैं कि पूरा एक जगह पे थोड़ा सा ब्लू, डार्क ब्लू कलर का ज़्यादा होता है, लेकिन आफ्टर टाइम, अगर आफ्टर सम टाइम वी लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब, और अगर हम उसको देखें तो जो वो वाटर है वो कम्प्लीटली ब्लूइश कलर में आ जाता है, जब जो आपके इंक के पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरह से वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास. Read the chapter or read the topic at home. Thank you and have a nice day.